So, in this time, I will complete all the account notes of one and two chapter. Okay, so let's start a basic account terms. It is very important. So when you starting the accounts in your 11th class, so first is your basic accounts terms. Okay, so I will start the six fundamentals for accounting vocabulary. So first is permanent record, balance sheet and temporary records, income, return, earning. Okay, so whatever. First is your important assets. What is assets? Think of measurable values a company own or control. Things measurable value, adding a value in your company. It is a assets. What is a liabilities? Liabilities is a type of debt what is company own. Debt means it is a not losses value. Okay, debt. Equity is a company represent our ownership. Equity, do you know about Shark Tank India? So it is know about equity shares states. It is a own of ownership. Okay. Business transaction, any financial activities that change business money. Okay. Business transaction means two parties included two parties. One party include the financial activity, change the financial business money. Okay, so it is very important. Capital. What is capital? Money invest in your business. One man. I will explain this. This is a man, right? Name is Pranav, and this is a business, right? Shop. So Pranav have a 50 crore rupees. Okay, and he invest in franchisee of McDonald's. So this 50 lakh crore rupees is a capital to invest in your business. Okay, so this is a capital money invest in your business. Okay, what is revenue? So income earned from normal business activities like a sales of goods, sales of anything. जब भी आप कोई भी अपना सामान बेचते हो, सेल करते हो, तो उससे जो इनकम निकलती है वो आपका रेवेन्यू होता है. रेवेन्यू आपका बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि रेवेन्यू आपका प्रॉफिट नहीं होता है. उसका जब रेवेन्यू जैसे निकलता है, आपका रेवेन्यू है 10,000, ऐसा लैपोज बता रहा हूँ, इससे होता तो नहीं है. 10,000 आपकी कंपनी का रेवेन्यू है. इसमें से आपका एक्सपेंसेस कटेगा, लाइटिंग कटेगा, सैलरी कटेगी, जो आपका आएगा 2,000 रुपीज़. ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट, इज अ ग्रॉस प्रॉफिट. अब इसमें से भी आप काटोगे कुछ अपना बिजली का बिल और अलग चार्जेस. सो वी गेट 10,000 रुपीज़ फॉर नेट प्रॉफिट. इज अ नेट profit. Okay, so this is what is expenses. So I will say this: lightning, sabona, or salary. These are the expenses of company. Okay, expenses, kharcha, cost incurred to earn revenue. Okay, profit and loss. Profit and loss, do you know about profit and loss? Revenue, expenses. Debit and credit. Debit and credit. Credit means like a Rahul give money to Rita. Okay, Rahul give money 10,000 rupees Rita. So he is Rita. In the case of Rita have a credit of 10,000 rupees. But in the case of Rahul, he is debit the 10,000 rupees from the Rita. So this is a whole process. Okay, what is journal? Journal is important. The first book account to be recorded in your financial transaction. Okay, so it is a journal. Okay, and ledger. Well, ledger is a financial transaction. Okay, and it is not important, but I write this. So most important is partnership. Do you know about partnership? Partnership have two members in your company, like a co-founder and whatever business sir and company owned by two or more member, right. It is most important partner deed. It is a written agreement between partnership, like equally shares, interests, and
इक्वल वोटिंग राइट्स, राइट, इक्वल वोटिंग राइट्स। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि क्या होता है कि कोई भी पार्टनर होता है तो आपका एग्रीमेंट साइन करवाता है, ऐसे मेरे साथ धोखा ना हो जाए, ठीक है। इक्वल राइट्स हो, ऐसे धोखा नहीं होता है, इक्वल राइट्स हो। तो PSR होता है प्रॉफिट शेयर रेशियो, रेशियो विच पार्टनर शेयर बिटवीन देम, ठीक है। जो पार्टनर होता है उसमें जो शेयर प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिवाइड करना, इसको रेशियो कहते हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो, ओके। व्हाट इज अ गुडविल? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ कंपनी टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ कंपनीज, ओके। एक्स्ट्रा प्रॉफिट में ऐसे बता दिया, रेपुटेशन ऑफ कंपनी टू हेल्प अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इट इज गुडविल, ओके। एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइन फर्म, डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस। सो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी कंपनी होती है, इसमें कोई पार्टनर जाता है, जैसे को फाउंडर है, सो वो को फाउंडर अगर आप में आता है तो आपको बहुत अच्छे चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप शादी कर रहे हो उससे, ठीक है ना, मतलब पूरा आप उससे रहोगे, समझोगे। अगर कोई भी बेकार काम हो जाता है तो आपकी पूरी कंपनी वो ख़राब हो जाती है, डूब जाती है। तो इसलिए अभी कहते हैं कि एक कंपनी थी, उसने एक साल में एक एम्प्लॉय को, मतलब एक को फाउंडर को हायर किया था, उसने बहुत चेक किया था, डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें, तो आपको ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है हमारा रिटायरमेंट और पार्टनर्स, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पार्टनर लीव द फर्म, जब पार्टनर रिमूव कर देता है, हट जाता है आपके बिजनेस से, तो उसको पार्टनर रिटायरमेंट कहते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट losses due to change in asset liabilities, okay. Dissolution of firm means closing of business permanently, not opening, permanently, okay. This is permanently, okay. So share of capital, sharing capital, money raised by issue shares, equity share and preference share. Most of the people know, most of the people see the Shark Tank, and he already know about preference share and liquidation. So I will explain this preference share. So no, I will write this preference share. It is a better than shareholder. आपने कोई शेयर खरीदा है तो आप शेयर होल्डर हो, लेकिन जो उसके ऊपर होते हैं, जो वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं, उनके पास लिक्विडेशन होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास सबसे पहले डिविडेंड आता है, ठीक है, फिक्स डिविडेंड होता है, पर कंपनी लॉस करे या ना करे उनके पास डिविडेंड आएगा। डिविडेंड वो चीज़ होता है, कंपनी कोई प्रॉफिट करती है तो उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, ठीक है। नो वोटिंग राइट्स, में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। अगर कोई एक आदमी है, वो 10 लाख करता है, ठीक है, वो शेयर होल्डर है, ठीक है, और कोई 10 करोड़ करता है, तो उसके पास प्रेफरेंस शेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का वो लिया है शेयर, ठीक है। और CEO के पास सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनके पास 50% ऑफ कंपनी होता है, तो इसलिए वो CEO होते हैं, ठीक। लिक्विडिटी, कैश एंड हाईएस्ट लिक्विडिटी, ठीक। लिक्विडिटी का ये मतलब होता है आपके पास जितना कैश है उतना लिक्विडेशन हो गया। सो कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो इज़ अ वेरी ब्रूटल सिचुएशन ऑफ कंपनी लॉसेस ड्यू टू, ये बहुत बेकार सिचुएशन होता है कंपनी का कैश फ्लो होता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ से जा रहा है, बहुत ब्रूटल कंडीशन होता है। रनवे क्या होता है? आपने कोई कंपनी की रहती है तो रनवे इज अ टर्न विच मीन्स टू हाउ मच मनी टू रन बिजनेस इन सर्वाइव। ऐसे आपके पास 10 लाख रुपीज़ है बिजनेस चलाने के लिए, तो आपके पास 10 लाख कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक चलेंगे आपके बिजनेस को रन करने के लिए, तो यही होता है आपका रनवे, ठीक। कैक क्या होता है? कैक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर कॉस्ट एक्विजिशन। आपने 50,000 रुपीज़ मार्केटिंग में खर्च कर दिया, ठीक है। सो उस मार्केटिंग से कितने आपके कस्टमर आए? लेट्स सपोज 500 कस्टमर आए, तो 50,000 अपॉन 500 मीन्स आपके आप ठीक है, आपके एक कस्टमर लाने के लिए 500 रुपीज़ लग गए। दिस इज़ अ कैक, कंज्यूमर कॉस्ट एक्विजिशन। सो डिबेंचर क्या होता है? लोन टेकन बाय कंपनी, ओके। सो ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जर्नल पार्टनरशिप, इबिट्टा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, कैक, कंज्यूमर कॉस्ट एक्विजिशन, रनवे, मनी
सर्वाइव इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा लेजर इज अ फाइनेंशियल एसेट्स वैल्यूबल ऑफ इंक्रीज लायबिलिटीज डेब्ट प्रेफरेंस शेयर लिक्विडेशन कैश फ्लो शेयरिंग प्रॉफिट डिल्यूशन डिविडेंड रिवोल्यूशन ऑफ। अब आता है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये आखिरी टॉपिक है, दूसरी बुक में है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा मोड़ा समझा देता हूँ फिनेंशियल क्या होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट के दो होते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आपने देखा होगा कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होता है, सो पहले वो बैलेंस शीट चेक करता है कोई कंपनी की क्या उसकी लायबिलिटीज़ है। बैलेंस शीट के अंदर उनके पास होता है एसेट्स, कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, वैल्यूबल है। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, ये देखिए एसेट्स थिंग्स मेजरेबल वैल्यू और ओन बाय कंपनी, ठीक है। तो ये एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक। तो मैं कुछ दिखा देता हूँ कि ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स आते हैं और लिएबिलिटीज़ आते हैं। लिएबिलिटीज़ मतलब डेप्थ, क्या होता है, कितने डेप्थ हैं उनके पास, ठीक है। और दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट इसमें होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसमें होता है, ठीक है। ऐसे चार्ट बनता है उसमें, यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, राइट। एंड यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये सब लिखते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आप कोई मशीन खरीदते हो, ठीक है, और लेट्स सपोज आप कोई मशीन खरीदते हो तो आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन आपको जो जीएसटी बिल करना है उसका मशीन का और भी कोई लाइटनिंग का है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। तो ये होता है। और एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स एसेट, एक करंट एसेट। फिक्स एसेट के अंदर आता है टेंजेबल एसेट जिसको आप टच कर सकते हो फिजिकली, विच कैन टच फिजिकली। intangible assets is which cannot touch physically and assets goodwill and patent, ठीक है। पेटेंट मीन आपका कोई कंपनी का कोई इनोवेशन है तो आप उसको पेटेंट कर लोगे तो आपको कोई कंपनी का आइडिया चुरा नहीं पाएगा, कोई ले नहीं पाएगा, आपका ये होता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ भी होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड ओन बाय करेंटीज, जनरल गुडविल, ठीक है। And we are talk about introduction upon accounting. Accounting is a art of record. It is a art. उस accounting कोई भी सीख सकता है, ठीक है। प्रोसेस का आइडेंटिफाई, कन्वर्ट इन मनी, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समरीज, एनालिसिस, लास्ट इज योर कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस हमारे इन्वेस्टर करते हैं, ठीक है। जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक, वो करते हैं कम्युनिकेशन। हमें एक बताता है कि कितने हमारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, राइट। सो ब्रांचेस क्या क्या होते हैं आपके ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। एंड अब हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग समझ गए क्या होता है, कि क्या होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि किसका एडवांटेज क्या होता है। पहली बात तो आपको लोन मिल जाता है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट तो यही है। फाइनेंशियल फैसिलिटी टू लोन, बैंक से आपको लोन मिल जाता है क्योंकि ये बैंक चेक करती है आपका अकाउंटिंग, और आपको ये पता होता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। फिनेंशियल में आपको पता होता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक। एविडेंसेस इन कोर्ट, आप कोई भी लोन लेते हो, आप उसका नहीं रीपे कर पाते तो आप उसका एविडेंस दिखा सकते हो कि मेरी कंपनी लॉस कर रही है, मैं नहीं कर सकता, डायरेक्ट शिफ्ट। और लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स क्या क्या लिमिटेशन, इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आप अकाउंट में जितने नंबर्स होते हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए, तो हमें पता नहीं होता है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कुछ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होते हैं, इग्नोर द कॉग्निटिव एलिमेंट, और ठीक है। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र वो होते हैं आर द यूज़र हु हैव टोटल फाइनेंशियल डाटा एंड आल्सो इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे एक ओनर है, ये एक ओनर है, ठीक है, तो उसको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल यूज़र। और जो बाहर का है कोई मोटा तगड़ा,
वो है इन्वेस्टर, उसके बाद को पैसे हैं, वो हो गया हमारा वो हो गया हमारा एक्सटर्नल इन्वेस्टर। ये इसके पास जाएगा, इससे ये पैसे लेगा, उसके बाद अपना बिजनेस बढ़ाएगा, ठीक है। दैट्स इट। तो उसमें ओनर हो गया। इंटरनल में होता है कि वो इंटरनल यूज़र आर द यूज हु हैव टोटल फाइनेंशियल डाटा। इसके बाद टोटल फाइनेंशियल डाटा होता है, इसके पास उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये उसको पैसा दे रहा होता है, इसको ये पैसा दे रहा होता है, ठीक है। बैंक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल स्टॉक टैंक एंड क्रेडिटर, ओके। हमारा आता है अब थ्योरी एंड बेस्ड अकाउंटिंग। थ्योरी एंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव मतलब ये होता है इसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी आती है, मतलब आप कोई भी अकाउंट बना रहे होते हो, ठीक है। जैसे दिस इज ओके, आप कोई भी ऐसे ब्लॉक अकाउंट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये है। अब यहाँ की चीज़ें आप यहाँ लिख दोगे तो बेकार लगेगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसे अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक बताया गया। डिसीजन मेकर अच्छा होना चाहिए। दीज आर द पीपल हु अकाउंटिंग ओनर दिस अंडरस्टैंडेबिलिटी इंफॉर्मेशन ऑफ अमाउंट शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेवेंस। क्या होता है, पहली बात तो रिलेवेंस आपको जानना है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी यूजफुल, वो रिलेट टू डिसीजन, आपके डिसीजन से वो रिलेट कर पाए। नहीं रिलेट करेगा तो वो रिलेवेंस नहीं है। प्रेडिक्ट वैल्यू, फीडबैक, आप कोई भी अकाउंटिंग बनाते हो तो आपको प्रेडिक्ट करनी पड़ती होती है, एग्जैक्ट नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, ठीक है। और रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग शुड बी ट्रस्टेबल। रिलायबिलिटी होता है ट्रस्टेबल, आप उसको बाद ट्रस्ट कर पाओ। वेरिफिकेशन, फेथफुल, न्यूरोटी। बेसिक टाइम आपको फिर बताया था, एसेट लायबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी, शेयर होल्डर। आपको बेसिक टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैग, इबिटा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट डिल्यूशन, पार्टनर डेट, गुडविल, डेप्टर, क्रेडिटर, वैट, जर्नल, लेदर कह रहा हूँ, लेजर, some concept of theory accounting, right? So basic accounting conception, fundamental accounting organization और concept। so fundamental accounting concept में 3 आते हैं हमारे, 3 इंपॉर्टेंट आपके बुक में 3 होगा, मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। और गोइंग कंसल्ट एंजेप्शन में ये होता है, आप कोई भी फिनेंशियल बना रहे हो बिजनेस के लिए, तो ये तो है नहीं कि कल बंद हो जाएगा, आप उसको लॉन्ग पीरियड तक बनाते हो, लॉन्ग। इन द केस ऑफ गोइंग कंसल्ट एंजेप्शन अकाउंटेंट थिंक बिजनेस विल बी लॉन्ग टर्म। कोई भी बिजनेस होगा तो लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म सोच के वो फिनेंशियल पूरा बनाएगा कि ये लॉन्ग टर्म में होगा कि हम ये बना रहे हैं, तो वो होगा गोइंग कंसल्ट एंजेप्शन में, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा है, कंसिस्टेंसी में हमारा क्या होता है, इसको ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। दिस इज मेन टू बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ केस ऑफ गोइंग कंसल्ट एजेंशन एंड देन इन अ केस ऑफ कंसिस्टेंसी एंजेक्शन द फॉलो सेम मेथड इन एवरी ईयर। आपको कोई मेथड है बिजनेस चलाने का, आपको कोई ट्रिक है, तो आप उस ट्रिक को हर एक साल, हर एक दिन, हर एक हर एक समय आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो यही आपकी कंसिस्टेंसी होती है एग्जेप्शन की। तो यही होता है। अक्रूवल एग्जेप्शन क्या होता है, रिकॉर्ड। अब जैसे आपके 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त आपके पैसे मांगे हैं, ठीक है, पैसे मांगे हैं, आपने उनको दे दिया है, ठीक है। इसमें से 2 दोस्त आपको पैसे दे दिए हैं, एक नहीं दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसका रिकॉर्ड रखोगे अपने पास। अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा आप वैसे टाइप के हो, थोड़ा हिसाब किताब वाले, तो आप उसका रिकॉर्ड रखोगे। तो ऐसे इसी में होता है, ठीक है। रिकॉर्ड कंक्रेट एक्सपेंसेस व्हेन देन हैपन नॉट कॉस्ट रिसीव। जब आपको कॉस्ट नहीं रिसीव होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे दुकानदार में वो आपका हिसाब किताब आपको हर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। अब आता है अकाउंटिंग आइडेंटिटी। आपकी अकाउंटिंग आइडेंटिटी, दिस अबाउट बाउंड्री इवन यू हैव बिजनेस यू एंड टू स्पेसिफिक, ये सब पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। बेसिक अकाउंट कॉन्सेप्ट, द बेसिक अकाउंटिंग आर रिफर टू एज द फंडामेंटल आइडियाज, बेसिक कंसेप्शन एंड आइडेंटिफाई द थ्योरी एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये तो आपको बता दिया हूँ, ये आपके बुक में है। NCERT गोइंग कंसल्ट कंसिस्टेंसी अकाउंट बेसिक आइडेंटिटी, मनी मैनेजमेंट, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, ट्रूवल एस्पेक्ट। अब आते हैं बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट वो टाइप का कॉन्सेप्ट, जैसे मैं हूँ प्रणव, ठीक है। प्रणव जिसके पास जितना भी कैपिटल होगा, कैपिटल वो लगाएगा अपने बिजनेस में, ठीक है, इन्वेस्ट मनी, ठीक है। अब वो बिजनेस क्या करेगा,
वो अपनी यूज़ करेगा परचेजेस में। अब मैंने अपने बिजनेस में लगाया, अब बिजनेस कोई लिविंग नहीं है, मैं ही खरीदूंगा, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में लगाया तो वो खरीदेगा वेजिटेबल, ब्रेड, मैंने लिखा है मैकडोनल्ड्स। सो पे एक्सपेंसेस, परचेज, एसेट, सेल्स, ठीक है। तो ये सब करेगा तो उससे जो प्रॉफिट होगा अब वो मुझे लौटाएगा दोबारा। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि बिजनेस के लिए इन्वेस्ट मनी कैपिटल भी लायबिलिटीज़ है और जो मैं प्रॉफिट दे रहा है वो भी लायबिलिटीज़ है, ठीक है। कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर इज लायबिलिटीज एंड बिजनेस एंटिटी, प्रॉफिट एंड द एंटिटी इज आल्सो लायबिलिटीज, सो बिकम ही इज गिविंग अ इन्वेस्टर और ओनर, ठीक है। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट स्टेट दैट ओनली ट्रांजेक्शन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग विच कैन एक्सपेक्टेड ऑफ पेमेंट एंड सेल गुड्स रिकॉर्ड। पीछे वाले कॉन्सेप्ट है आपका जो रिकॉर्ड्स है बिजनेस रिलेटेड, आप उसको फाइनेंशियल में रिकॉर्ड कर लेते हो, सिंपल। इसमें ग्रोइंग कंसेप्ट आपको बताया था कि लॉन्ग पीरियड चलता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज अ पीरियड ऑफ टाइम समरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू टैक्सेस गवर्नमेंट इन अदर वर्क्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मैंने यहाँ पे बना दिया है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपका खूब टाइम लगते हैं बिजनेस को ग्रो होने में, बिजनेस को बढ़ने में। तो क्या होता है कि हर एक आखिरी साल में, जैसे 1 अप्रैल टू ले लो और 31 मार्च तक, मतलब एक पूरा साल हो जाएगा। तो एक पूरे साल में आपको समरी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जैसे टैक्स देने पड़ते हैं कि आपने इतने प्रॉफिट किया है उसमें इतना % आपको अपने टैक्स मुझे देना है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, राइट। This is the concept about whole this, and this is a whole, no, not a whole, but I will cover all the accounting, only theoretical part.